Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and you are preparing pretty well for your examination. So this is second part of 5 minutes video series in which I'm going to provide you so many different complex topics in a very simple and clear language. So in the previous one we have covered t-test as well as chi-square test and what is the basic difference between both of them, and also we have compared one example. So in this one, we have to see one-way ANOVA and two-way ANOVA and the difference between them in a very pretty easy language, right? So apart from that, I only want you to subscribe the channel so that I will provide more and more videos for all of you. So what is ANOVA? So as it is like analysis of variance. Why we name it as analysis of variance? So ANOVA does what? ANOVA is used to do what? It is basically a statistical method, a statistical tool which is used to determine that is there any significant difference, right? Is there any significant difference between means of how many group? Two group? No, because for two, if you want to compare the means of two group, we will use the t-test. If it is more than two, then only we use the ANOVA, right? So therefore, you have to focus on this word, means of three or more independent group by comparing the variance. Therefore this name analysis of variance, यानी हम variance के through between the group and within the group. Between the group क्या होता है? For example A B C. So ये हो जाएगा between the group के बीच में क्या differences हैं, within the group में A के कितने treatments होंगे, 5, तो इनके बीच में भी क्या डिफरेंसेस हैं, एंड विद इन द ग्रुप. तो हम वेरिएंस कंपेयर करके अनोवा निकालते हैं. नाउ अनोवा कैन बी कैलकुलेटेड वाया वन वे और वन फैक्टर अनोवा, टू वे और टू फैक्टर अनोवा. सो एज वन मीन्स सिर्फ एक ही फैक्टर को, सिंगल फैक्टर को अगर कंपेयर कर रहा है with a dependent variable, then it is termed as one way ANOVA. यानी it will compare only a impact of single factor, let's say x on y. ठीक है, बट टू वे अनोवा क्या होता है, दो इफेक्ट्स को लाइक x एंड y का क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है, क्या आउटपुट आ रहा है z पे. ठीक है, z पे क्या आउटपुट आ रहा है ये दिखा जाता है. तो जब दो फैक्टर्स का इम्पैक्ट आप देख रहे हो एक डिपेंडेंट वेरिएबल पे, देन इट विल बी टर्म्ड एज वन वे अनोवा. बट वहीं इफ यू आर इवेलुएटिंग द इफेक्ट्स ऑफ टू कैटेगोरिकल इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन अ डिपेंडेंट वेरिएबल, देन इट इज टर्म्ड एज टू वे. अब कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा कि मैम ने तो लाइंस लिख दी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. चलो इजी कर देते हैं. सी, one way ANOVA, just let me choose the pen color. Okay, one way ANOVA, two way ANOVA. As I told, one way ANOVA is known as one factor, two way ANOVA is known as two factors. So for example, if you want to like rate the cake based on the flavor, like I choose chocolate, you will choose vanilla, somebody will choose strawberry. So as per their choice they will choose. Now they will provide some rating that if I like chocolate I will give 9 out of 10, but if you don't like chocolate, what you will give? You will give some 5 out of 10. So what is the dependent factor? So the taste rating different among the three flavors, यानी कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, फ्लेवर है. रेटिंग क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है. ठीक है, क्योंकि रेटिंग किस पे डिपेंड करता है, रेटिंग फ्लेवर पे डिपेंड करता है. यानी जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका एक ही फैक्टर है जो उसे इन्फ्लुएंस कर रहा है. ठीक है, यहाँ चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी, सिर्फ आप फ्लेवर्स देख रहे हो केक के, तो ये वन वे हो जाएगा. ठीक है, नाउ टू वे क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, डू फर्टिलाइजर एंड सनलाइट अफेक्ट प्लांट ग्रोथ. यहाँ क्या हो गया, दो वेरिएबल्स हो गया, दो फैक्टर हो गया, और प्लांट ग्रोथ क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. ठीक है, ये दो इंडिपेंडेंट है. अब लो सन, हाई सन. ठीक है, फर्टिलाइजर है यहाँ पे ए फर्टिलाइजर, बी फर्टिलाइजर. तो डज फर्टिलाइजर मैटर, डज सनलाइट मैटर, इज देयर एनी इंटरेक्शन इफेक्ट? ठीक है, दोनों ही दोगे तभी प्लांट अच्छे से ग्रो होगा. ठीक है, हियर यू कैन सी ए में लो सन है तो प्लांट उतने अच्छे से ग्रो नहीं हो रहे हैं, हाई सन है तो भी प्लांट उतने अच्छे से ग्रो नहीं हो रहे हैं. ठीक है, बट हियर यू कैन सी कि फर्टिलाइजर बी और हाई सन में ये बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं. ठीक है,
सो टू फैक्टर यानी कि दो वेरिएबल्स जो हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस करेंगे। क्विकली कंपेयर करते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, वन वे में एक ही होगा, टू वे में दो होगा। एग्जाम्पल क्या हो गया, वन वे का सिर्फ मान लो फ्लेवर ओनली, ठीक है। टू वे में क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजर प्लस सनलाइट। इंटरैक्शन चेक करता है क्या, तो इंटरैक्शन कौन चेक करेगा, जिसमें दो फैक्टर्स होंगे। सो टू वे इंटरैक्शन चेक करता है, वन वे नहीं करता है। So one factor, one way ANOVA, two factor, two way ANOVA. I hope this is pretty much easy for all of you. अगर आपको अच्छा लगा हो, ये क्यूट सा डायग्राम आपको अच्छा लगा हो, तो यार सब्सक्राइब तो बनता है ना, ताकि मैं और मोटिवेट होके इस तरह की चीज़ें लेके आऊँ। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड ऐसे टॉपिक्स आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो जिसे हम सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में कवर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।